سب سے پہلے بات ہوگی گھوٹکی سے، جہاں سے ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ڈھیرکی کے قریب خوفناک ٹرین حادثہ پیش آیا ہے۔ ملت ایکسپریس کی بوگیاں حادثے کے بعد پٹری سے اتری ہوئی تھی کہ لاہور سے آنے والی سر سید ایکسپریس ملت ایکسپریس کی بوگیوں سے جا ٹکرائی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے حادثے میں 25 سے زائد مسافروں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ 50 سے زائد مسافر زخمی ہیں۔ مزید زخمیوں کو بوگیوں سے نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ الصبح ہوا خوفناک ٹرین حادثہ۔ ریلوے حکام کے مطابق ملت ایکسپریس کراچی سے سرگودا روانہ ہوئی۔ ٹرین منزل کے جانب رواں دواں تھی کہ گھوٹکی پر ڈھیرکی کے قریب پہنچی تو اچانک پٹری سے اتر گئی۔ بوگیاں ڈیریل ہوئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ اس دوران دوسرے ٹریک سے سر سید ایکسپریس آن پہنچی اور پٹری سے اتری ملت ایکسپریس کی بوگیوں سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں متعدد مسافر شدید زخمی ہو گئے، جنہیں پہلے اپنی مددات کے تحت بوگیوں سے نکالا گیا، پھر امدادی کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ تعداد زیادہ ہے، بٹ ایگزیکٹلی فگر ہم اس لیے کوٹ نہیں کر سکتے کہ کافی لوگوں کو یہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ تو لیٹر ہمیں ہاسپٹل سے زیادہ فگر پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ جب میں خود یہاں پہ آ رہا تھا تو آلموسٹ کچھ 6 ایمبولینسز اور کچھ اور گاڑیاں میں نے دیکھی جس میں لوگ جا رہے تھے۔ پھر ہمارے آنے کے بعد بھی کافی گئے ہیں، تو میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا، بٹ آئی کین سیفلی سے کہ جی مور دین 40 لوگ یا 50 لوگ تو ہوں گے جو کہ زخمی تھے۔ حادثہ کیسے پیش آیا، اس حوالے سے بھی تحقیقات جاری ہیں۔ ہمارا اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایمبولینس حکومت تک پہنچا سکیں، ضلع کے تمام وسائل کو بروئے کار لا سکیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، ملٹی نیشنل ہیں، کمپنیز ہیں، ان کو بھی یہ کہا گیا ہے، اور اس وقت ایک ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے ڈسٹرکٹ میں، تاکہ لوگ فوراً فرسٹ ایڈ دی جائے، جتنی جانیں ہم بچا سکیں، وہ ہمارا گول ہوگا اس وقت۔ ملت ایکسپریس کی بوگیوں کو ڈیریل ہوئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے، ایسے میں بر وقت اقدام سے جانی نقصان سے بچا جا سکتا تھا، تاہم ریلوے حکام اور لائن مین کے درمیان رابطے کا فقدان کیوں ہوا؟ عوام حکام سے سوال کا جواب چاہتے ہیں۔ گھوٹکی ٹرین حادثے کے حوالے سے مزید بھی جانتے ہیں۔ سکھر سے ہمارے نمائندے جمیل مغل ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، اور گھوٹکی سے ہمارے نمائندے ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ثاقب سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے، جانیں گے ثاقب نصیر سے کہ وہاں کیا تازہ ترین صورتحال ہے۔ پہلے جمیل مغل آپ کی جانب آ جاتے ہیں، یہ بتائیے گا اب تو 3 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں، ریلوے حکام کا اس حوالے سے کوئی موقف سامنے آیا ہے، کچھ پتہ چل سکا ہے؟ اقدامات کے حوالے سے کیا کر رہی ہے ریلوے؟ جی تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے ہیں اس حادثے کو، اور ریلوے حکام جو ہیں، اعلیٰ افسران جو ہیں، اب تک جائے حادثہ پر نہیں پہنچ سکے، نہ ہی کوئی وفاقی وزیر، نہ ہی جنرل مینیجر ریلوے، اور نہ ہی کوئی سیکرٹری ریلوے، بلکہ ڈی ایس ریلوے بھی وہاں اس وقت جو جائے حادثہ پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ چند لوگ جو ہیں ریلوے کے وہاں پہنچے ہیں، اور ریلیف ٹرین جو روڑی سے پہنچنی تھی وہاں کام کرنے کے لیے، وہ بھی وہاں اب تک جو ہے وہ پہنچی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے سست روی کا شکار ہے، جبکہ اب جو ریسکیو کا عمل ہے وہ اب بھی جاری ہے اور تیزی سے جاری ہے۔ تمام عملہ جو ہے وہاں پہ جو ضلعی جو لوگ ہیں، ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں، ایس پی ہیں، وہاں پہ اپنی ٹیموں کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ دیگر جو ادارے ہیں، نجی ادارے ہیں، ان کے لوگ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، علاقہ مکین پہنچے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس حادثے میں جو ہے بچ گئے ہیں مسافر، انہیں جو ہے سڑک پر پہنچانے کے لیے وہاں پہ علاقہ مکین جو ہے اپنی ٹریکٹر ٹرالیاں لے آئے ہیں، بڑی تعداد میں ٹریکٹر ٹرالیاں وہاں لائی گئی ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہاں سے شفٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جو مسافر بچ گئے ہیں، جو اپنے سامان کے ساتھ جو ہے ان کو ٹرالیوں پہ روڈ پر جو ہے، جو مین روڈ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے، وہاں پہ کوئی ٹیکسی وغیرہ بھی نہیں چل سکتی، تو وہاں سے ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکے۔ حالانکہ یہ کام ریلوے کا ہے، ریلوے ٹرین دے، وہاں پہ کوئی امدادی ٹرین چلائے، جو مسافر وہاں بچ گئے ہیں ان کو اپنی منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے، لیکن ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ چیز تو دور کی بات ہے، جو وہاں پہ ریسکیو آپریشن ہے اس میں ریلوے کو ہمیں اس کا عمل دخل نظر نہیں آیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت جو مسافر تھے، انہوں نے جو پہلے ٹرین جو ہے اس کے ڈبے الٹ گئے تھے، تو وہاں پہ جو اپنی مدد آپ کے تحت جب نکال رہے تھے مسافروں کو وہاں سے ٹرین کے ڈبوں سے، ملت ایکسپریس سے، تو وہ لوگوں نے دیکھا، ان کو نظر بھی نہیں آئی، اور ایک دم جو آ کے دوسری ٹرین اس میں جا ٹکرائی ہے، تو یوں جو کیجویلٹی ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں،
اور इस वक्त जो बताया जा रहा है 30 से ज्यादा लोग जो हैं साकिब नसीर भी हमारे साथ मौजूद है घोटकी से, ताजा तरीन उनसे भी जानते हैं। साकिब, ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर इस वक्त कितनी एम्बुलेंसेस मौजूद हैं और कितनी बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं, क्योंकि बोगियां तो बहुत ज्यादा हैं जो टकराई हैं आपस में। जी बिल्कुल, मैं वहीं पे जा रहा तो मौजूद हूँ जहाँ पे अगर एम्बुलेंस की तादाद है वो दर्जनों में एम्बुलेंस की तादाद है। जबलपुर सादाबाद रैयापुर से जो एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच चुकी है और जो जख्मी है उनको निकाल कर अस्पताल में मुंतकिल करने का जो काम है वो जारी है। यहाँ पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो अहले इलाका है उनकी तादाद में मौजूद है और जो इसी के सामने मतलब जख्मी को निकालने और उनको निकालने के लिए साकिब, शिकायत सामने आ रही थी कि यहाँ पर आलात मौजूद नहीं है क्योंकि रेलवे हुकाम खुद देर से जागी है इस हादसे में। तो ये बता दीजिएगा कि अभी तक यहाँ पर क्या आलात मुंतकिल कर दिए गए हैं? कहा जा रहा था कि बोगियां काट के लोगों को निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कुछ बोगियां हैं उसमें काफी लोगों को निकाला गया है। जो हम देख रहे हैं कि कई यहाँ पे जो मजे थे वो पड़ी हुई है तो कुछ जो है ना अपना काटने का जो काम है वो अभी तक सड़क साथ किया गया है कि मकामी सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी तरह भी जो हादसे में जो निकाला ये बताइएगा साकिब, करीब करीब कितने अस्पताल हैं? क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं उतना ज्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर अस्पताल ऑपरेशनल होंगे। तो कहाँ जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है? जो अफराद जाँ बहक हुए हैं उनको कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है? अभी देखिए हमारे पास इतना तो वो नहीं है तो बाड़ों में 7 जो मजत है उनको पहुंचा दिया गया है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ मजत यहाँ पे भी गाय बकरी से भी मौजूद है, उनको कपड़ा देकर रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं अगर अस्पताल की बात करूँ तो सबसे जो करीब अस्पताल है वो डेर की ओर खड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली का जो रास्ता है इस तरह वो दूसरा रास्ता है। तो इसी हिसाब से जो जख्मी है या जो मजत है उनको बड़े अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो मैं ये बताना कि फैसलाबाद पंजाब से भी जो है डबल रेस्क्यू की गाड़ियां भी आई हुई है तो वहाँ उनमें भी एम्बुलेंसों में जख्मी है उनको पंजाब फैसलाबाद या रेमत मुंतकिल करने का जो काम है वो जारी है। ठीक, साकिब क्या सूरत हाल है? कुछ पता चल सका है कितनी बोगियां आपस में टकराई हैं और कितनी जो है पहले से खड़ी ट्रेन की बोगियां हैं और फिर जब यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन आई तो उसकी कितनी बोगियां जो मुतासिर हुई हैं? देखिए हम देख रहे हैं कि जो 5 से 6 बोगियां वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। हमारे मिले के जो लोग हैं वो काफी अंदर मौजूद है तो उनके जो जख्मी है उनमें भी काफी हो गए। हम देख रहे हैं कि 5 से 6 जो बोगियां वो बिल्कुल मुख्तलिफ तबाह हो चुकी है और नीचे मतलब खाली गिरी हुई है। तो लगे देखते हैं कि क्या सूरत है मकान। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा साकिब। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते हैं। जमील, आपकी जानिब आ जाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात है, 2 घंटे लगे तकरीबन हुकाम को जागने में और इस पर कोई एक्शन लेने में रेलवे हुकाम की जानिब से कोई भी एक्शन इमीडिएटली नजर नहीं आई। क्या वजह सामने आई? रेलवे क्या कहती है? इस ताखीर की क्या वजह थी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं था फौरी? सादिया, यहाँ पे सक्खर डिवीजन रेलवे में 1990 से हादसा, बड़े बड़े हादसा जो है रूनुमा हुए हैं। सबसे बड़ा हादसा सांगी में हुआ है रोडी के करीब, उसके बाद जो है घोटकी में हुआ है, उसके बाद फिर सरहद रेलवे स्टेशन पर हुआ है। एक और हादसा जो है वो भी घोटकी के करीब हुआ है। तो ये हादसा रात के टाइम होते रहे हैं और रेलवे हुकाम जो है इसी तरह निगलिजेंसी का मुजाहरा करते रहे हैं। अब भी जो है 4 घंटे गुजर गए हैं लेकिन रेलवे हुकाम अफसरान जो है वहाँ जाए हादसा पर नहीं पहुंचे हैं। बल्कि जो इस वक्त जो मदद की जरूरत है, मुसाफिरों को सख्त मदद की जरूरत है। जो जख्मी है उनको जो इंतजामिया है वहाँ की घोटकी की वो पहुंचा रही है, वहाँ एम्बुलेंस के जरिए जो है अस्पतालों में पहुंचा रही है, जबकि वहाँ कैंप भी लगा दिया गया है। वहाँ भी जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि जो क्रिटिकल जो जख्मी हैं उन्हें सादकाबाद और रेलिया खां जो है मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेज जो है वहाँ से मंगवाई गई हैं, वो भी काम कर रही है। लेकिन रेलवे का जो हमें नजर आ रहा है, अमला नजर आ रहा है, वो बिल्कुल इस पे संजीदा नहीं है कि जो मुसाफिर इतना किराया देकर और अपनी जान हथेली पर रख के जो सफर करते हैं तो उनके लिए कोई भी जो है बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। और जो लोग यहाँ बच गए हैं उनकी जो है अपने इलाकों में शिफ्टिंग के लिए जो है वो भी बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। हालांकि वहाँ पे उनको बसेस दी जाती, जो ट्रेनें हैं दोनों तरफ से ट्रेनें आ सकती थी,
तो वो भी लोगों को जो अपने मंजिल तो कोई बयान या कोई वजाहत पेश की गई है कि 2 घंटे जो पहले ही मिल्लत एक्सप्रेस वहां पर मौजूद थी, तो लाहौर से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस वहां से कैसे टकरा गई? 2 घंटे की ताखीर थी, पीछे 2 घंटे का गैप था, कोई इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकी? कुछ पता चल सका है? क्या मौक़िफ़ है इस पर रेलवे हुकाम का? सादिया, देखिए, सखर डिवीजन रेलवे बहुत बड़ा डिवीजन है और यहाँ पे सखर में डीएस ऑफिस में एक बहुत बड़ा कंट्रोल ऑफिस मौजूद है जहाँ पे 15 से 20 लोग जो है काम करते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर जो है तकरीबन 18 ग्रेड का कंट्रोलर यहाँ पे मौजूद होता है और यहाँ पर कंट्रोल ऑफिस में तमाम जो आलात हैं, जदीद आलात लगे हुए हैं। बोर्ड बहुत बड़ा एक नस्ब है जहाँ पे ट्रेन को देखा जा सकता है कि ट्रेन किस मकाम पर पहुंची है, जबकि जो ट्रैकिंग सिस्टम जो अभी आम हर आदमी के हाथ में है, ट्रैकिंग सिस्टम वो बहाल है। 2 घंटे ट्रेन जो है वहाँ खड़ी रही है। अगर 10 मिनट भी कोई ट्रेन वहाँ लेट हो जाए या खड़ी हो जाए या किसी स्टेशन पे खड़ी हो जाती है तो रेलवे काम जो है वो देखते हैं कि ये ट्रेन क्यों खड़ी है। यहाँ तो 2 घंटे से ट्रेन जो है वो उलट गई थी और ट्रेन वहाँ खड़ी रही, तो रेलवे हुकाम नहीं जागे। तो ये हमारे एक अंदाजे के मुताबिक जो 3:45 बजे का टाइम था जिस वक्त ये हादसा हुआ है, तो ये रेलवे हुकाम जो है हमें जो सूरत हाल नजर आ रही है वो तो वहाँ अपने कंट्रोल रूम में सोते रहे होंगे और लोग जो हैं वो अपनी कीमती जाने जो हैं वो जाया होते अपने आंखों से देखते रहे लोग। तो इस तरह सूरत हाल जो है रेलवे हुकाम जो है उनकी बिल्कुल नेग्लिजेंसी का मजारा है। और ये सूरत हाल मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताऊंगा कि जब से ये हमारे हादसा साथ ही मौजूद रहिएगा। इंतहाई अफसोसनाक हादसा ये पेश आया है घोटकी में, जहां 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। ढेरकी के वाकये के बाद मुख्तलिफ शहरों में ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई है और अभी तक हम देख रहे हैं कि रेलवे हुकाम की जानिब से भी कोई बयानात या मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है। क्लियरली कुछ बताया नहीं जा रहा है कि क्या करने जा रही है वो। कराची जाने वाली ग्रीन लाइन सादिकाबाद स्टेशन पर रोक ली गई है, जबकि रहमान बाबा एक्सप्रेस रहीम यार खान स्टेशन पर मौजूद है। इसी की तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज। बताइएगा कितनी ट्रेनें हैं जो कि मुतासर हुई हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसे के बाद जो है दर्जनों ट्रेनें जो है वो मुतासर हुई हैं, जिनको मुख्तलिफ जो स्टेशन है उन पर रोक लिया गया है। सादिकाबाद में जो है ट्रेन हादसे के बाद मुसाफिर ट्रेनों को मुख्तलिफ जो स्टेशन है उन पर रोका गया, जिसमें कराची जाने वाली ग्रीन लाइन सादिकाबाद स्टेशन पर रोक ली गई है। इसके बाद रहमान बाबा एक्सप्रेस रहीम यार खान शाह हुसैन को जो है वो खानपुर स्टेशन पर रोक दिया गया है। लाहौर जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस जो है उसको रोहड़ी स्टेशन पर रोक लिया गया है। मुल्तान जाने वाली जिक्रिया एक्सप्रेस को जो है घोटकी में वो मौजूद है। तो इस तरह जो है वो जो मुसाफिर हैं, मुसाफिर ट्रेनों में वो शदीद जो है परेशानी का उनको सामना है। यहाँ के अंजुमन ताजरान और 7 सोसाइटी जो अफराद हैं उन्होंने वो जो है वो स्टेशन पर आ गए हैं और वो खाने पीने की एशिया जो है वो उन मुसाफिरों में जो है वो तकसीम कर रहे हैं। तो ये बताइएगा अहमद नवाज कि यहाँ पर मौजूद मुसाफिर जो रुल रहे हैं रात 4 बजे से उनको पता नहीं है कि उनकी ट्रेन कितने बजे रवाना हो रही है, उनको कुछ बताया गया है, कोई आसरा दिया गया है कि कितने घंटे लग सकते हैं, ताकि कम से कम वो जहनी तौर पर तो वो जो तजब्जुब का शिकार है उससे तो बाहर आ जाए? मैं जब स्टेशन पर गया हूं तो कोई भी रेलवे स्टेशन का कोई भी अफसर जो है वो वहां पर मौजूद नहीं था और ना ही उनको कोई इस तरह की जो है वो मालूमात दी गई है कि आपको जो है किस मुतबादिल रास्ते से जो है आपको अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाया गया है। इस हवाले से उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। 4 बजे से जो है वो मुसाफिर जो है बच्चे खवातीन बड़ी तादाद में जो है वो स्टेशन पर मौजूद है, जो शदीद जो है अजियत का शिकार है, परेशानी के आलम में वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के सादिकाबाद की जो 7 सोसाइटी और अंजुमन ताजरान जो है वो अपनी मदद आप के तहत वहाँ पर जो है उनको नाश्ता भी फराहम कर रहे हैं और खाने पीने की एशिया जो है वो भी वहाँ पे फराहम कर रहे हैं। ठीक है, अहमद नवाज हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करें सादिकाबाद से। सूरत हाल वहां पर बहुत ही परेशान कुन है लोगों के लिए। रात 4 बजे से लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। दर्जनों ट्रेनें हैं जिनकी आमदोरफ्त मुतासर हुई है। अभी तक हुकाम की जानिब से क्लियरली कुछ नहीं बताया गया है। अपनी मदद आप के तहत लोग वहां पर एक दूसरे की मदद करते हुए खाना तकसीम कर रहे हैं और सिचुएशन जो है रेलवे के हवाले से अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। इसी पर मजीद भी बात करते हैं। हुमा भट्ट हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, लाहौर स्टेशन की सूरत हाल से आगाह करेंगे। लाहौर से आने वाली गाड़ी टकरा गई घोटकी में जाकर हुमा, और रेलवे हुकाम की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं सामने आ रहा कि आया वो क्या इक़दाम कर रही है। जो गाड़ियां रुक गई हैं, ट्रेनें रुक गई हैं, उनको कैसे बहाल किया जाएगा उनकी आमदोरफ्त को?
جی بالکل، اس وقت ہم لوگ یہاں پر ریلوے اسٹیشن لاہور میں موجود ہیں اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں انتظامیہ کی طرف سے بار بار یہ موقف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ٹرینیں جو ہیں یہ لاہور سے جاتی ہی نہیں ہیں. حالانکہ سر سید اور اس کے علاوہ ملت جو ہے ہم لوگوں نے بہت دفعہ دیکھا کہ یہیں سے جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جتنے بھی لوگ انتظامیہ کے موجود ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرینیں یہاں سے نہیں جاتی ہیں. اور ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر فی الحال لاہور ریلوے اسٹیشن پر کسی قسم کا کوئی انفارمیشن ڈیسک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. صرف ایک انکوائری جو ہے وہ وہیں پر ہے جہاں پر پہلے بھی ہوتی تھی. کوئی ڈیسک یہاں پر ہمیں فی الحال دکھائی نہیں دے رہا. اور جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں معمول میں جو رش ہوتا ہے ریلوے اسٹیشن پر وہ بھی یہاں پر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. یہاں پر بالکل نارمل سچویشن دکھائی دے رہی ہے. لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں. ٹرینیں یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی، لیکن بہت سی ٹرینیں جو ہے وہ یہاں پر منسوخ کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے تھے وہ اس وقت یہاں سے جا رہے ہیں کہ جب ٹرین جو ہے وہ جانے کا ٹائم مل جائے گا تو تب یہاں سے جائیں گے. لیکن فی الحال یہاں پر یہ بتائیے گا کہ کیا لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اب ان کی ٹرین کتنے بجے روانہ ہوگی یا وہ خود ہی یہاں سے واپس جا رہے ہیں؟ بالکل، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ کی طرح یہاں پر ابھی تک کوئی انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ٹرین جو ہے وہ کتنے بجے ان کی جائے گی. سو اس وجہ سے لوگوں کو، کیونکہ ایک تو واقعے کے بارے میں پہلے ہی علم ہو چکا ہوا ہے کیونکہ یہ رات سے واقعہ پیش آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے خود بذات خود یہ ایک فیصلہ کیا ہوا ہے. میں بہت سے لوگوں کو یہاں پر دیکھ رہی ہوں جو کہ یہاں سے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو بالکل اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی ہے کہ آیا ان کی ٹرین جو ہے وہ کب تک جائے گی یا کتنی دیر تک وہ انتظار کریں اور وہ بعد میں ان کی ٹرین جو ہے وہ چلی جائے گی. فی الحال کچھ لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں وہ فی الحال ان کو جن کو انفارمیشن نہیں ہے وہ یہاں پر انتظار کر رہے ہیں. کچھ یہاں پر انتظار گاہ ہے جہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہاں سے مجھے اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ خالی ہو چکا ہوا ہے. صرف ایک اور ایک. جی تو ہما یہ بتا دیجیے گا اگر ملت ایکسپریس جو ہے لاہور سے روانہ نہیں ہوتی تو پھر کہاں سے ہوتی ہے؟ سر سید اگر لاہور سے روانہ ہوتی ہے تو پھر کہاں سے ہوتی ہے یہ بھی بتا دیجیے. اگر ویب سائٹ کے اوپر ملت اور ایکسپریس کا ملت یا پھر سر سید کا نام لکھا ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ اس طرح سے سیدھے سیدھے الفاظ میں کیسے جھٹلا سکتی ہے ریلوے حکام کے جی یہاں سے تو ہوتے نہیں؟ اور پھر کوئی مسافر اگر لاہور سے جس کا تعلق ہو ان کے گھر والوں کے لیے کتنی پریشان کن بات ہے کہ ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ کہیں ان کا کوئی جاننے والا تو متاثر نہیں ہو گیا اس ایکسیڈنٹ میں. تو اس ساری صورتحال پر کیا کہنا ہے ریلوے حکام کا؟ ہما سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مین وائل ہم کراچی کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں کہ وہاں اس وقت کیا سچویشن ہے. انوشے آپ کی جانب آ رہے ہیں کینٹ اسٹیشن پر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ کیا یہاں بھی جو ریلوے ٹرانسپورٹ ہے وہ متاثر ہوئی ہے؟ سعدیہ سیمسن دیکھیں افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے یہ ملت اور سر سید کے درمیان، اس کے اندر جو نتیجے میں 30 سے زائد جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، 40 سے زائد جو ہے وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت ہم کراچی کینٹ اسٹیشن میں موجود ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور سے جو ہے ابھی ایک جنا جو ہے وہ پہنچی ہے، کیونکہ یہ بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ حادثے سے پہلے جو ہے وہ نکل چکی تھی لاہور سے. اس وقت اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو یہ ابھی پہنچی ہے بالکل کراچن کے اوپر. اور جو حادثے کے نتیجے کے اندر جو سر سید جو حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر بھی جو ہے کافی نقصان دیکھنے میں آیا. لیکن کینٹ اسٹیشن کے جو انتظامیہ تو انوشا بتائیے گا یہاں پر جو حکام ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی ٹرین کی آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ڈیلے ہو سکتا ہے؟ مسافروں کو کوئی انفارمیشن ڈیسک دیا گیا ہے جہاں سے انہیں پتہ چل سکے ان کی فلائٹس کے حوالے سے؟ سعدیہ سیمسن دیکھیں اگر ہم بات کریں ٹرینوں کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا ہے عملے کی جانب سے کہ 10 بجے بھی ایک ٹرین جو ہے یہاں سے روانہ ہوگی جو کہ پشاور کی طرف جائے گی. لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹرین جو ہے وہ تاخیر کا شکار نہیں ہے، ایسا جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل لا علم دکھائی دیتے ہیں. افسوسناک حادثہ جو یہ پیش آیا ہے، تمام ٹریکس جو ہے وہ بند دکھائی دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ملت جو ہے وہ گھوٹ کی جا رہی ہے جبکہ سر سید جو ہے وہ لاہور سے کراچی پہنچ رہی تھی. ابھی آپ نے دیکھا کہ لاہور سے ایک جنا جو ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے کراچی کینٹ اسٹیشن. بتایا یہ جا رہا ہے کہ حادثے سے پہلے جو ہے یہ ٹرین جو ہے وہ روانہ ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ حادثے سے پہلے جو گاڑیاں روانہ ہو چکی تھی ان میں کوئی تاخیر نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ آسان نہیں ہے یہاں کینٹ سے بھی انفارمیشن نکالنا. ریلوے حکام اتنا زیادہ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے. بٹ آپ کی جانب آ جاتے ہیں، یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر سر سید بھی لاہور سے روانہ نہیں ہوتی، ملت بھی نہیں ہوتی، تو پھر یہ بتا دیں کہ اس کے اندر جو لاہور کے مسافر ہیں ان کے جاننے والے جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوں گے. مطلب آپ جھٹلا تو نہیں سکتے، ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیلز موجود ہوتی ہے کون سی گاڑی کہاں سے روانہ ہوتی ہے، تو ایسے کیسے حکام یہ بیان دے سکتی ہے؟
जी बिल्कुल, हुकाम की तरफ से ये अभी फिलहाल मुझे बताया गया है कि सर सैयद जो है वो जाती है जी रावलपिंडी से और मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो फैसलाबाद से रवाना होती है। सो यहाँ पर इस वक्त कभी कभी यहाँ पर आती हैं, तो जब यहाँ पर पैसेंजर्स लेकर जाने पर होते हैं या फिर वहाँ पर बहुत कम मुसाफिर होते हैं तो यहाँ पर लाहौर में लाई जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वो नहीं आई है। सो उनका ताल्लुक जो है वो यहाँ से नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आ भी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा भी रहे हैं। और परेशानी जो आप पहले भी मुझसे पूछ रही थी कि जिसको यहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर उसका कोई प्यारा उसमें मौजूद है और लाहौर से गया हुआ है तो उसे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो फिलहाल यहाँ पर कोई इंक्वायरी डेस्क या कोई भी यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन डेस्क मौजूद नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक ऑफिस है जहाँ पर कुछ लोग जो है वो सुबह के वक्त मौजूद होते हैं, कोई एक मौजूद होगा तो उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से ली जा सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जितनी भी इंतजामिया है, खासतौर पर जो टीटी एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद है और वो हमें जो इन्फॉर्मेशन जो है वो बार बार बता रहे हैं कि इस तरह की यहाँ से जो लोग हैं वो काफी कम लोग जो है वो यहाँ से जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर लोग मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई इंतजामिया जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि लोगों को अगर कोई यहाँ पर आने वाला है मौजूद रहिएगा। अनुषा, आपकी जानिब आ जाते हैं। मीनवाइल हमारी कोशिश होगी कि फेडरली अगर कोई जवाब तो मिल सके, कोई जागे तो सही हुकाम की जानिब से, कोई ट्वीट ही दाग दी जाए, कुछ बता ही दे दिया जाए कि लोगों को कैसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कौन से अस्पतालों में उनके प्यारों को मुंतकिल किया जा रहा है, कितने अफराद जख्मी हैं। हुकाम की जानिब से अभी तक कुछ भी इस हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। अनुषा, ये बता दीजिएगा, यहाँ पर ताखीर तो नहीं हुई है, लेकिन जो अगली ट्रेनें हैं जो अब चलनी है मजीद, क्या उनमें कोई ताखीर हो सकती है? हुकाम क्या बता रहे हैं आके? सादिया, फिर वही बात बोलूंगी, यहाँ का काम तो इल्म दिखाई देता है। बस ये बताया कि एक हादसा पेश आ गया लाहौर और घोटकी के ट्रेनों के दरमियान। लेकिन अगर हमने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि 10 बजे जो ट्रेन वो चलेगी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मजीद ट्रेनों की, तो जो लाहौर से आने वाली या घोटकी की साइड से आने वाली ट्रेनें उनमें जरूर ताखीर का शिकार जो है वो हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो दीगर जगह ट्रेनें जो जाएंगी वो ताखीर का शिकार नहीं हो रही है, ऐसा जो है वो रेलवे हुक्काम का कहना है। लेकिन जो यहाँ पर मुसाफिर बैठे हुए हैं, जिनके लोग पहुंच रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई थी तो वो यही कहते हैं कि जो ट्रेन की टाइमिंग बताने वाले वो ही सीट पर जो है वो मौजूद नहीं है। तो जो मामला है वो ही जो है वो बिल्कुल। लेकिन अनुषा, ये तो एक मामला है। हम शुक्र करते हैं कि चले ताखीर का शिकार नहीं है। 10 बजे जो यहाँ से ट्रेन रवाना हो रही है, मुमकिन तौर पर उसमें भी कोई ताखीर नहीं होगी। लेकिन जिन अफराद जो एक्सीडेंट वहां पर हो गया है, क्या उनमें से किसी का ताल्लुक कराची से हो सकता है? उसके लिए जैसे जैसे खबर फैलेगी लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे, तो कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क देख रही हैं आप, किसी का प्यारा हो सकता है, किसी का कोई जानने वाला हो सकता है जिसका ताल्लुक कराची से हो? सादिया, देखिए बिल्कुल हो सकता है जो लोग जहां बाग हुए हैं, जो जख्मी हुए, उनमें से बहुत मुमकिन है कि कराची से भी किसी का ताल्लुक हो सकता है। लेकिन जो है हम जब यहाँ पर कैंट स्टेशन पे पहुंचे तो ऐसा कुछ भी माहौल दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई हादसा पेश आया है। सब अपने काम में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ जो टिकट काउंटर है वहां पर हमने जाके जब मालूमात हासिल किए तो उनका ये कहना था कि बस वो हादसा पेश आ गया, लेकिन जो ट्रेनें हैं वो ताखीर का शिकार नहीं होंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल कोई भी लवाहिकीन जो है हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। बहुत मुमकिन तौर पर हो सकता है कि यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाए, क्योंकि एक ट्रेन कराची से जो वो जो रवाना हुई, 4 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं कायम किया गया है। जिनके प्यारे यहाँ पर इस हादसे से मुतासर हो सकते हैं, वो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ कैंट स्टेशन और फिर लाहौर स्टेशन में पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क कायम नहीं किया गया है। लोगों को परेशानी है। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल स्पॉट पर क्या है, ये साकिब नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ घोटकी से मौजूद है, उनसे जानते हैं। और सखर में जहां पर एक बड़ा सेंटर है और वहां पर तमाम आमदोरफ्त को कंट्रोल किया जाता है, इन्फॉर्मेशन वहां पहुंचती है। सखर स्टेशन में इस वक्त क्या सिचुएशन है ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जमील मुगल हमारे नुमाइंदे। पहले घोटकी की सूरत हाल जान लेते हैं। बताइएगा साकिब, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं यहाँ पर अब? क्योंकि रेलवे हुकाम की जानिब से कुछ भी फेडरली हम देख रहे हैं, विफाकी तौर पर कोई ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, तो कुछ पता चल सका है कि ये बोगियां यहाँ से कब तक हटा दी जाएंगी, कब तक रेस्क्यू का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, बोगी उतारने का काम तो दूर की बात है। अभी जो एक बोगी में जो लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, जिंदा है अंदर लोग फंसे हुए मौजूद है, और उसके बाद उसको निकालने के लिए रेस्क्यू का काम जारी है। हमारी डीसी घोटकी एसएसपी उमर की बात हुई है तो यही उनका कहना है कि हमारे पास भारी मशीनरी की हमें सख्त जरूरत है। हमने इंडस्ट्रियल को भी कहा है कि हमें भारी जो मशीनरी है वो फौरी तौर पर भेजी जाए, ताकि हम जो बोगियों को हटाने और उनसे लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का हम काम शुरू कर सकें। और उनका ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो रिलीफ ट्रेन आना थे तो वो भी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे।
हादसे के बाद जो बोगी पकड़ी है वो ठीक नहीं है, उसकी हालत तो उसको भी मसला है। ट्रेन इतलात आ रही है साकिब नसीर के 30 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए हैं, आप तक क्या इतलात पहुंची है? यहाँ पर रेस्क्यू की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल मैं यही तो ज्यादा को है वो 30 से भी कमिश्नर घोटकी हैं उस्मान अब्दुल्ला, उनका यही कहना है कि इनके हो सकता है तादाद इनसे भी ज्यादा हो, और जो ज्यादा जो लोग हैं वो जख्मी हैं, तो उनको जो है अस्पतालों में अपने काम जारी है। उनका यही कहना है कि हमने इंफॉर्मेशन कैंप भी कायम किया है, मेडिकल कैंप भी कायम किया है, ताकि जो थोड़े बहुत जख्मी हैं लोग उनको यहाँ ठीक, तो किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया जा रहा है जो लोग ज्यादा जख्मी हुए हैं नसीर? जी बिल्कुल, जो सख्त जख्मी सजीव जख्मी है उनको रेमियार खान अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ रेमियार खान और फैसलाबाद से भी जो 1122 एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पे हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साकिब नसीर हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं, घोटकी की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। 30 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस अफसोसनाक वाकये में। एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि 14 से जायद बोगियां हैं जो कि मुतासर हुई हैं, टकराई हैं और बुरी तरह से आपस में टकराई हैं ये बोगियां, जिनमें से काट कर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें से ज्यादातर की तादाद बताई जा रही है कि खतरे में है और उनको बड़े अस्पताल रेफर किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इब्तदाई तौर पर जब यह हादसा पेश आया था तो पुलिस वैन के अंदर भी लोगों को, जख्मियों को और जाँ बहक होने वालों को मुंतकिल किया गया है, क्योंकि यहां पर एम्बुलेंसेज नहीं थी। लोगों ने जो मकामी हैं अपनी मदद आपके तहत यहां से लोगों को मुंतकिल किया, कुछ को वहीं पर जो है फर्स्ट एड मुहैया की गई है, पुलिस की जानिब से भी फर्स्ट एड मुहैया की गई है, लेकिन यहां पर रेलवे हुकाम की जानिब से कोई तर्जुमान जिसने तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेना हो यहां नहीं पहुंचा है। सखर करीबी है जहां पर एक बड़ा स्टेशन है, तमाम चीजें वहां से कंट्रोल होती हैं, वहां ट्रैफिक कंट्रोल रहता है, एक बड़ा मॉनिटरिंग सेंटर वहां पर कायम है, हर वक्त वहां पर अमला होता है, जदीद मशीनरी उनके पास मौजूद है, तमाम ट्रैफिक को वहां से देखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी आए रोज ये हादसात होते रहते हैं। जमील मुगल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद भी जान लेते हैं। जमील, ये बताइएगा कि रात में क्या कोई भी मॉनिटरिंग सेंटर में अमला मौजूद नहीं था कि 2 घंटे तक एक गाड़ी पहले हादसे का शिकार रही और उसके बाद दूसरी गाड़ी उस गाड़ी में आके जाके लग गई और किसी को पता नहीं चला कि ये क्या हुआ है? सादिया देखें, 2 घंटे तक जो गाड़ी वहाँ पे जो 4 बोगियां हैं उसकी मिलित एक्सप्रेस की वहाँ गिरी है दूसरे ट्रैक पर, तो वहाँ पे रेस्क्यू का जो है वो अमल जारी था। अपनी मदद आपके तहत जो मुसाफिर जो ठीक थे उन्होंने जो लोगों को निकालना शुरू किया। 2 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी था कि अचानक जो है वो एक ट्रेन जो है वहाँ आकर लगी है। तो आप देखें इतना इस दौर में इतना जदीद सिस्टम मौजूद है और सक्कर के अंदर कंट्रोल ऑफिस में मौजूद है, वहां से मॉनिटर किया जाता है, हर गाड़ी को जो है मॉनिटर किया जाता है। अभी आप यहाँ से अगर आप फोन करेंगे कंट्रोल रूम में तो वो कंट्रोल रूम वाले बताएंगे कि फलानी गाड़ी जो है फलाने स्टेशन पे से चली है और वो फलानी जगह पर मौजूद है। उसके बाद जो है आम आवाम के लिए ट्रैकिंग सिस्टम भी मौजूद है। तो आप सक्कर से आपके मौके जानने की कोशिश की कि फिर ऐसा क्या हो गया कि जब सब गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन वहां रहती है तो पता नहीं चल सका कि सर सैयद भी वहां पर पहुंचने वाली है और पहले से ही वहां पर मिल्लत को हादसा पेश आ चुका है? देखिए, डीएस ऑफिस के अंदर कंट्रोल रूम मौजूद है और डीएस ऑफिस जो है, डीएस का घर भी जो है वो डीएस ऑफिस के बिल्कुल साथ मौजूद है। तो इन लोगों को साहब खुद यहाँ पर पहुंचने की उन्होंने कोशिश की है, यहाँ पर जायजा लेने की कोशिश की है? किसी ने सब इंतजार करे कि विफाक से कोई एक्शन के लिए कहा जाएगा, कोई हुक्म दिया जाएगा तो उसकी तामील होगी, या बजाते खुद भी यहाँ पर कोई आया है? देखें, डीएस से जो है हमारी इत्तला के मुताबिक हमें यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे डीएस से यहाँ पे के हमें यहाँ मौजूद हो। तो वफाक से जो इत्तला आएगी तो वो डीएस जो है यहाँ से जो पोजीशन होगी, जो इस टाइम जो सूरत हाल है, कितने लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं, क्या पोजीशन है, वो डीएस ही है, वो वफाक को बताएंगे। तो मकामी सतह पर अगर हम देखते हैं वहाँ के हुकाम कहाँ हैं, उनकी जानिब से कोई आया है यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पे एसएसपी यहाँ पे मौजूद है घोटकी के, यहाँ पे डीसी मौजूद है, वो तमाम चीजों को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। रेलवे हुकाम से कोई पहुंचा है यहाँ पर? रेलवे का हुकाम के पास जो ज्यादा नफरी है वो रोड़ी में मौजूद होती है। इमदादी ट्रेन जो है इस वक्त 4 घंटे
के करीब जो टाइम गुजर चुका है, 4 घंटे से ज्यादा हो ये चुका बता है। दीजिएगा जमील, रोहड़ी से घोटकी का कितना फासला है जो 4 घंटे गुजर जाने के बाद भी वहां से यहाँ पर कोई नहीं आ पाया? एक्सप्रेस ट्रेन का जो रास्ता है इस मकाम से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, तो अगर रिलीफ ट्रेन आएगी तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पहुंचेगी। तो अब तक जो है वो रिलीफ ट्रेन नहीं आई है। रिलीफ ट्रेन के साथ तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो हैं, जितना बड़ा हादसा है कि 100 से ज्यादा लोग जो है रेलवे के साथ होंगे, क्रेन उनके साथ होगी, कटर होंगे, क्योंकि यहाँ पे गैस कटर की सख्त जरूरत है। जो हादसा हुआ है बुरी तरह जो है डब्बे जो है एक दूसरे के अंदर जो है बिल्कुल धंस गए हैं और लोग वहाँ पे मौजूद हैं और उनका निकलने का रास्ता नहीं है। जब तक वहाँ पे मशीनरी नहीं आएगी, डब्बों को सीधा नहीं किया जाएगा, काटा नहीं जाएगा, तो लोग वहाँ से नहीं निकलेंगे। अब तक भी जो बताया गया है, जो डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो हमें नजर आ रहा है कि काफी लोगों की साहब की जानिब से भी कोई बयान सामने नहीं आया। इंतहाई अफसोसनाक खबर है ये, और अगर यहाँ पर आलात नहीं पहुंचाए जाते हैं तो ये हादसा एक अलविये में तब्दील हो सकता है। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बोगियां आपस में एक दूसरे में धंस गई हैं और लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं। इस पर मजीद भी जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अनुषा। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा से। कराची में इस वक्त क्या देख रही हैं आप? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आपने बताया 10 बजे एक ट्रेन रवाना भी होनी है और लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो रहे होंगे क्योंकि उनके प्यारे मुमकिन है कि इस गाड़ी में हो, इस ट्रेन के अंदर। सादिया देखें, बिल्कुल बहुत मुमकिन है कि वो लवाहिकीन यहाँ पर पहुंचे क्योंकि काफी बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया है। या दीगर लोग जो मौजूद हैं, जो दीगर ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि अफसोसनाक वाकया पेश आया, आप यहाँ मौजूद हैं, किस ट्रेन का वेट कर रहे हैं और कितना आप जो रेलवे हुक्काम, जो रेलवे की इंतजामिया है, उससे मुतमईन है? जी, ये जो हादसा पेश आया है ये तो पाकिस्तान में मामूल बन चुका है कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद ट्रेन का कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आता है। ये तो पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। बाकी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं इलामा इकबाल। इस हादसे की वजह से बाकी सारी ट्रेनें भी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। बाकी हमारी हुकाम से यही अपील है कि काइंडली अपने सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। ये बताएं कि जो अंदर टिकट काउंटर पे जो अमला बैठा हुआ है, कोई भी अमला आपको ऐसा दिखा जो टाइमिंग बता सके कि आ सके कि इस वक्त पे ये ट्रेन पहुंचेगी? क्योंकि काफी मुसाफिर ऐसे यहाँ बैठे हुए जो इस बात से परेशान है कि अमला मौजूद नहीं है। जी, अमला मौजूद होता है मगर वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। पाकिस्तान में जो भी बंदा अपनी सीट पे बैठा होता है वो अपने आप को इदारे का मालिक समझता है। इधर जंगल का कानून है, तो बस हम तो यही कह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें सिर्फ वही लोग नहीं जिनका हादसा पेश आया, दीगर जो लोग हैं वो भी इस हादसे पर जो है वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि रेलवे के जो इंतजामिया, जो हुकाम है, उनसे बिल्कुल मुतमईन दिखाई नहीं देते हैं। ये अमला मौजूद होता है लेकिन कोई डिटेल उनको फराहम नहीं की जाती है। उसके अलावा जो है वो कराची से जो मिल्लत रवाना हुई थी वो जो है 4 बोगियां उसकी उतरी है, जिसके नतीजे में जो है वो काफी लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। लेकिन जो ट्रेनें हैं वो भी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी शदीद परेशानी से दिखाई देते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई भी जो है वो यहाँ इमरजेंसी की सूरत यहाँ दिखाई नहीं देती है। कराची कैंट स्टेशन के ऊपर भी दूसरी जानिब अगर हम बात करें, ये भी कहा जा रहा है कि 10 बजे ट्रेन रवाना होगी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई लवाहिकीन तो ठीक है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा अनुषा, इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और नसीर से इस हवाले से मजीद भी जान लेते हैं। साकिब नसीर, ये बताइएगा इस वक्त क्या लग रहा है? सबसे अहम बात तो ये है और सबको इंतजार ये है कि रेलवे की जानिब से एक तो यहाँ पर रिलीफ गाड़ी पहुंच सके, यहाँ पर आलात आ सके। मुसलसल हम देख रहे हैं कि जाबहक होने वाले अफराद की तादाद बढ़ती चली जा रही है। साकिब से इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। जमील, आपकी जानिब आ जाते हैं। जमील, ये इंतहाई अफसोसनाक है और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि यहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे वो बहुत ही ज्यादा बेबस अपने आप को महसूस कर रहे होंगे कि उनके हाथ में कुछ नहीं है और अंदर अगर किसी का प्यारा किसी भी बोगी में फंसा हुआ है तो वहाँ दीगर जो मौजूद लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही परेशान कुन बात है। रेलवे हुकाम की जानिब से कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर कब दूसरी गाड़ी आएगी। जी, यहाँ पे रेलवे हुकाम को फौरी तौर पर, क्योंकि डीएस अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ पहुंचे हैं और उनका कहना है कि हम जो है हमारी रिलीफ ट्रेन जो है वो पहुंचने वाली है रोड़ी से और वो वहां से बोगियों को वगैरह को जो है वो लाइन से हटाएगी। लेकिन इससे पहले जो है रिलीफ का अमल जो है, जो लोगों को जाने हैं उनको बचाने के लिए, जो जख्मी हैं उनको निकालने के लिए, वो सबसे बड़ा जो है अहम मसला है। और अब तक जो है हैवी मशीनरी जो है वो जो बोगियों को से जो कटिंग सिस्टम है उसको निकालने के लिए वहां अब तक नहीं पहुंच सकी है। तो सबसे जो अवलीन जो काम है, डिप्टी कमिश्नर से भी मेरी बात हुई है, अभी वो भी इस जाए हादसे में मौजूद है।
उनका भी यही कहना है कि हमने जो है निजी जो कंपनी है उनको भी कहा है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ ताउन करें और जल्द अज जल्द जो है वो हमें रिलीफ का सामान भेजें, अमला भेजें, ताकि हम यहाँ से बोगियों को काट कर आवाम की जानो माल को जो है वो बचाए जा सकें। अब ये रेलवे हुकाम को चाहिए कि जो लोग यहाँ पे इस ट्रेन में मौजूद हैं, मुसाफिर मौजूद हैं, उनकी जो जानो माल की हिफाजत जो है रेलवे का फर्ज है, और जो बच गए हैं लोग उनको उनकी मंजिल मखसूस तक पहुंचाने के लिए कोई बंदोबस्त किया जाना चाहिए, को वहाँ बसें आनी चाहिए या कोई दूसरी गाड़ियां आनी चाहिए, ट्रेन जो है वहाँ ट्रेन आनी चाहिए, ताकि लोगों को वहाँ पे उनकी मंजिल मखसूस तक जो है पहुंचाने के लिए वहाँ पे दोनों जानिब से रेंबियर खां से भी ट्रेन आ सकती है और ये रोड़ी से भी ट्रेन आ सकती है, दोनों तरफ से जो है ट्रैक खुला हुआ है। तो कम अज कम वहाँ हादसा पे जो लोग वहाँ मौजूद हैं, जो मुसाफिर हैं, जो लुटे पुटे मुसाफिर हैं, उनको अपनी मंजिल मखसूस तक पहुंचाना जो है वो रेलवे का फर्ज है। लेकिन हमें ये चीज नजर नहीं आ रही है, ना यहाँ पे ट्रेन मौजूद है, ना अब यहाँ पे कोई बस मौजूद है। अभी जो सूबाई वजीर हैं ट्रांसपोर्ट, उनका एक हमें बयान सामने आया, उनका कहना है कि हम जो है वो बसें पहुंचाने के लिए जो है वो मैंने ऑर्डर किया है कि वहाँ पे जाए हादसा पर जो है जाए हादसा के करीब जहां तक जो है वो मुसाफिर बसें पहुंच सके वहां पे पहुंचाएं, और जो लोग बचे हैं, जो मुसाफिर हैं, जो परेशान हैं, उनको जो है कम अज कम करीबी इलाकों तक पहुंचाया जाए ताकि वो अपनी मंजिल मखसूस तक पहुंच सकें। जी ठीक है। साकिब नसीर, ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर क्या आप कोई एक्टिविटी होती हुई देख रहे हैं कि रिलीफ ट्रेन के लिए कोई रास्ता बनाया जा रहा हो, और जो ऑलरेडी पटरी के ऊपर बोगियां गिरी हुई हैं उनके लिए क्या कोई इकदाम होता हुआ आपको नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे हमें जो किसी भी तरह रेलवे की जानिब से कोई इंतजाम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जो हमारी जो मकामी इंसान है वो यही कहना है कि रिलीफ जो ट्रेन है वो डेहरी पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे जो पटरियों का मसला है, पटरियां जो है वो टूटी हुई हैं, तो आगे आने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। कि हम देख रहे हैं कि रेलवे जो इंतजाम है वो वहाँ पे पहुंचे, उन पटरियों को उनका चेकअप करे, तो उसके बाद जो है यहाँ पे रिलीफ ट्रेन पहुंच सके, तो उसके बाद हम कोई बेहतर जो काम है वो कर सके। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो उसमें फंसे हुए हैं। जो मुसाफिर हैं वो भी परेशान हैं। मुसाफिर अपनी मदद आपके तहत या जो इलाका है, अहले इलाका है वो, और जो मकामी इंतजाम उनको बसें और जो बोगियां पटरी से उतरकर साइड पर गिर गई हैं, क्या उनके अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं या उनसे तमाम तर को निकाल लिया गया है? नहीं, बिल्कुल एक बोगी में जो लोग हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं, मौजूद हैं, जिंदा हैं या वो जख्मी हैं, अभी तक उसके हवाले से कोई भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो मकामी इंसान है उनका यही कहना कि हमारे पास हैवी मशीनरी जो है वो मौजूद नहीं है। हम अपने जो हमारे पास जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो उसी हिसाब से हम रेलवे बोगियों को काटने का काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन हमने जो यहाँ इंडस्ट्रीज है, माड़ी केस है, जो दीगर इंडस्ट्री इदारे हैं, उनको हम कहा हुआ है कि वो हमें जो कटर होती हैं, गैस कटर होती है, गाड़ियां होती हैं, जो हैवी मशीनरी है वो हमें दें, ताकि हम जो लोग फंसे हुए जो बोगियों में, तो उनको हम निकाल कर अगर वहीं है तो उनको अस्पताल मुंतकिल या जो भी है मतलब उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। तो हमारे साथ ही मौजूद रहेगा नसीर साकिब, हमारे नुमाइंदे जमील मुगल हमें अपडेट कर रहे हैं। आपसे फिर भी राब्ते में रहेंगे और यहाँ की सूरत हाल जानते रहेंगे। लाहौर का रुख कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदा हुमा भट्ट वहां से हमें मुसलसल अपडेट करिए। हुमा भट्ट, बताइएगा कुछ पेशरफ्त नजर आ रही है यहाँ पर? आप इंफॉर्मेशन डेस्क कोई फराहम किया गया हो जहाँ पर लोग आकर तमाम तर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आया कितनी गाड़ियां जो हैं या कितनी ट्रेनें जो हैं वो डिले हो सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर कोई किसी किस्म का हमें इन्फॉर्मेशन डेस्क दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जरूर है जो यहाँ पर अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं, जो दूसरी ट्रेन में जो आ रहे हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी जरूर है। खास तौर पर ये वाकया जब से उन्होंने सुना है तब से वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनके प्यारे आ जाए। एक शख्स है मेरे साथ, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ, उनसे जानती हूँ कि कौन सी ट्रेन में उनकी जो फैमिली है वो आ रही है और वो उनसे उनका इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइएगा कहाँ से आपकी फैमिली जो है वो आ रही है और आप कितने परेशान हो रहे हैं सुनकर वाकया? जी मैम, मसला ये है कि मेरी फैमिली जो आ रही है वो दूसरी ट्रेन से आ रही है कराची से लाहौर के लिए, तो वो तो अभी पहुंचने वाले हैं। मगर ये मसला जब हमसे टीवी पे देखा हमने तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर बेचैनी भी और परेशानी भी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं और काफ़ी लोग इसमें इंजर्ड भी हैं। तो इस वजह से हमें मसला ये आ रहा है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं उन्होंने बनाया किसी लोगों के लिए भी कि भाई कोई आगे पूछ ले कि क्या मसला है, कितने लोग हो चुके हैं, कईयों के प्यारे हैं, अभी यहाँ पे आना लोग शुरू हो जाएंगे। इनको चाहिए कि इसके लिए कोई डेस्क वगैरह कोई
نہ کوئی تو بنائیں, کیونکہ اس کے لیے ہم خود, میں ابھی آیا ہوں, میں نے دیکھی ہے نیوز یہ, تو میں خود بہت پریشان ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے. کوئی انفارمیشن یہاں پہ ابھی تک کسی نے کوئی نہیں دی ہمیں. اچھا, آپ کو اپنوں کے بارے میں بھی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اسی ٹرین میں آ رہے ہیں, کسی اور ٹرین میں, لیکن خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ نہ پیش آئے؟ بالکل, ہم خود, میں اسی لیے تو پریشان ہوں, خدا نہ خواستہ یہ اس ٹرین کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا تھا. تو یہ تو ہمیں چاہیے نا کہ اس پہ چیک کریں کہ کیسے یہ کیوں ہوا ہے حادثہ. اس طرح کے حادثے روز روز ہوتے رہتے ہیں, ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرین کا یہ حادثہ ہو گیا وہ. تو یہ اس کو روکنا چاہیے, اس کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے ہمیں, کوئی اس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ ایسے حادثے کیوں پیش بار بار ہمارے ملک میں آتے ہیں. اتنی زیادہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں اس حادثے میں, اور کئی زیادہ انجرڈ ہیں. تو اس کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے اوپر ہمیں انفارمیشن بھی دینی چاہیے یہاں پہ ریلوے والوں کو کہ بھئی کتنے لوگ ہو چکے ہیں, اور انفارمیشن ڈیسک لازمی ہمیں یہاں پہ بنانا چاہیے ان کو لیے. بالکل, یہاں پر انفارمیشن ڈیسک بنانا چاہیے, لیکن یہاں پر کوئی کسی قسم کا ڈیسک نہیں دکھائی دے رہا. اور یہاں پر ایک اور شخص بھی ہیں, وہ بھی اسی طرح پریشان ہیں, اپنی فیملی کا انتظار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کی معلومات جو ہے وہ انہیں پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے. سر بتائیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی اتنی نالائکی ہے کہ ابھی تک کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ کہ کسی کو مطلب بتانے کے لیے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے, کیا حالات ہیں. حالات بتانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے ہی ہے, پورا اسٹیشن خالی پڑا ہوا ہے. ہم تو صرف ٹی وی پہ ہی دیکھ رہے ہیں, لیکن جو بھی ہوا ہے پٹری سے 5 بوگیوں نیچے اتری ہیں, اس کے بعد ٹرین آئی ہے اس کے اوپر ہی چڑھ گئی ہے. تو یہ نالائکی ہے نا سب سے زیادہ. یہ ہمارے منسٹروں کی سب کی وہ اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھے, وہ ابھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ان کو صرف گورنمنٹ چاہیے, بس گورنمنٹ کا ہی کام ہو رہا ہے, اور یہاں عوام کا یا کسی چیز کا کوئی سرے کار کوئی نہیں ہے. آپ کی فیملی جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے اور کب سے انتظار؟ کراچی سے آ رہی ہے. ظاہر ہے یہ بھی فون آ رہے ہیں, سب پریشان تو ہے نا. یہاں ایک ڈیسک لگانا چاہیے, اگر یہ چاہے ادھر گاڑی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, لیکن ان کا کام تو ہے نا. یہاں کوئی کام نہیں ہے, کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. آپ نے ہم سے ہی پوچھا ہے نا, اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کتنے لوگ مر گئے ہیں, 100 کے تعداد سے ہی مر گئے. کوئی یہ کوئی 32, 33, 34 نہیں ہے. بوگیوں سے جو اندر سے نکال رہے ہیں وہ ابھی تک ہیوی مشینری نہیں پہنچی وہاں پہ. تو اس لیے یہ نالائکی ہے سب سے. جی آپ سن رہے ہیں کیا غصہ ہے کتنا زیادہ لوگوں میں, اور وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی انفارمیشن جو ہے وہ انہیں پرووائڈ کی جائے, لیکن کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی ہے. یہ دو وہ لوگ تھے جن کی فیملی جو ہے وہ کراچی سے آ رہی ہیں, اور وہ دونوں کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ انہیں کم از کم کوئی انفارمیشن دے دی جائے کہ ان کی جو ٹرین ہے, جو ان کی ٹرین میں جن کے پیارے ہیں وہ محفوظ ہیں, وہ ٹھیک ہیں, ان کے راستے میں کوئی ایسا ویسا جو واقعہ ہے وہ پیش نہیں آیا. سو ڈر ضرور ہے, خوف ضرور ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پر کسی قسم کا ریلوے حکام کی طرف سے کوئی یہاں پر ہم لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کوئی انتظامیہ موجود ہو, کوئی یہاں پر ڈیسک بنایا جا رہا ہو, کوئی انفارمیشن ہی ایٹ لیسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہو. یہاں پر بہت شکریہ ہما بٹ, آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھی, اور وہ یہی بتا رہی تھی کہ جو دیگر ٹرینیں ہیں وہ اب ٹائم پر پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں. کوئی انفارمیشن ڈیسک نہیں قائم کیا گیا. یہاں پر جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے کراچی سے یہاں پہنچنا ہے, نیکسٹ آنے والی ٹرین جو ہے اس کا انتظار کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں لوگ, لیکن ان کو نہیں پتا کہ آیا اس ٹرین میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں.